Pimpri Chinchwad University. Today, we have a very distinguished guest amongst us who is from the academic community. At the same time, he has worked in the industry as well. So I'm very happy and very humbled to have Dr. Prafulla Hate with us from the MIT Academy of Engineering, Alandi, Pune. To talk about him, it's a very checkered record he has got in terms of teaching, in terms of industrial training, in terms of career coaching. So Dr. Prafulla is working as a Dean Research and Development with the MIT Academy of Engineering, Alandi. He is a professor who holds a PhD in mechanical engineering. He has done his graduation and post-graduation from the reputed Government College of Engineering in Pune itself. He has completed two post-graduations in engineering as well as management. He is certified as an international teacher and trainer by the Cambridge University, United Kingdom. He is a chartered engineer as well. He has worked as a consultant for various industries like the kinetic engineering, Mahindra and Mahindra, Larsen and Toubro, So L&T, happy like BHEL, Force some Motors, and MAN recommends Trucks. I would request people to kindly mute their audios. He's a corporate trainer and he has conducted close to around 120 sessions and workshops for working professionals. On the entrepreneurship side as well, Dr. Prafulla is quite distinguished. He received silver and bronze level certificates from the Vadhvani Foundation as a global jury for evaluating the highest number of ventures across the globe. He's also a master trainer who is certified by Wipro Technologies, Bengaluru, under the Mission 10X program. He has conducted various training programs and workshops for teachers in higher education as well for more than 500 hours. He has in total 8 years of industrial experience and a whopping 22 plus years of academic experience. He's a researcher, and at the same time, he has published close to around 18 papers, and he has 11 patents to his credit so far. And I'm sure the number is going to rise on the way. He's a professional trainer on an online education platform where students across 100 plus countries are also learning mechanical engineering courses from him. And last but not the least, Dr. Prafulla is a neuro-linguistic programmer, NLP, and coach certified by the Midas Touch. He is counseling people to enhance their life through NLP techniques and other spiritual tools. He also has a proven record of counseling parents and students in one-on-one sessions for the last 10 years to select the best career options. So with this checkered track record, I'm sure today's session on Happy Life will really enlighten us from all angles, from the professional angle as well as personal angle, and for all of us to become Mr. and Mrs. or Miss or Master 360 degree across all spheres, be it academic, be it professional, or any sphere, you name it, in this universe. So with this introduction, I would like to hand it over to Dr. Prafulla Hate and take it on from here. Welcome, Dr. Prafulla Hate. Please. Thank you. Thank you, Rajiv Kumar sir, for a nice introduction of mine. And a very happy morning to all the participants in this webinar. And if you really like to wish me a happy morning, use a chat box and key in happy morning. And if you are still tech savvy, you can just key in H and M for happy morning, so that let us be this morning very, very happy. I definitely would like to say a great thank you to Rajiv Kumar sir, who has taken this initiative, and Pimpri Chinchwad University for giving me this invitation. And I'm really honored to share a handful amount of information which is absolutely essential for each and every individual to remain happy. किसी को अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि who would like to become happy or remain happy in your life, then everybody will say, yes, it's me. Every one of us definitely would like to be happy. And this is the webinar wherein we are going to learn so many things, right from what exactly is happiness, then how can we improve our happiness levels. And along with that, I have also added some very, very important topic, that is hormones. So I'll be talking about some happy hormones and how we can enhance those hormones in our day-to-day activities. Very simple, very easy task. So this is going to be very, very useful webinar for
all of you. Now, some of you might be wondering, there is nothing on the screen. So is there any PPT? Yes. Being on a webinar, the PPT is really required to be there. So I'll be sharing my screen and let's begin now. Yes, I hope now the screen is visible to all. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Yeah, please go ahead. Okay. Yes. Being happy in life is absolutely essential. And every one of us are trying hard to be happy. In pursuit of happiness, we keep on doing blah, 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 many things, right from buying good things, eating some very nice food, wearing some very nice clothing, doing makeup, and doing n number of things. But still, at the end of the day, many of us are still feeling, okay, aaj to happiness mila hi nahi. So what is that at the end of the day, which we are really looking out for? And how can we achieve it? So let us first understand what exactly is the meaning of being happy. So at any moment of time in this webinar, if you feel that you would like to ask me a question, you can unmute, talk to me. The chat option is also enabled. You can keep on chatting with me and I will be happy to answer your questions as well. So let us be happy. Let us begin now. When we say happiness, then it is definitely a state of mind. हम लोग सोचते हैं कि happiness is something where somebody is going to give it to me and then I will buy it or I will borrow it or I can sometimes snatch the happiness. It's not like that. Happiness basically is a state which is created in our mind. So how do we create that state of mind? Some of us will feel very happy because of some joy in their life. Kuch to mila aaj. I'm feeling very joyful because I played a game. So that can be one of the reasons. Or a fulfillment. I have achieved PhD, postdoctoral, or I have purchased a new home, I bought my car, or for some students, they may feel that, okay, I got my graduation with the flying colors 9.5 CGPA. So that can be the fulfillment. And at the same time, sometimes achievement, getting medals, getting recognition, getting appreciation. It's all about achievement. Achievement is very small thing. In fact, we feel that, okay, if I get a president medal, then it can be an achievement. It's not like that. A friend of mine is appreciating me. "Are, aaj aap bahut achhe lag rahe ho." That can be a simple thing which I feel very happy with. So everything is boggling around in mind. So if it is related to mind, then definitely there are certain things which are really required to do inside the mind, which will really help. ठीक है? चलिए, तो देखते हैं कि ये माइंड गेम चलता कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल. सो फर्स्ट थिंग इज समथिंग लाइक इनर स्टोरी इज इक्वल टू आउटर रियलिटी. ये क्या है? इनर स्टोरी हर एक के दिमाग में चलती रहती है. लेट अस से दैट द स्टूडेंट इज appearing for an examination. The inner story is, I have prepared say 6 units and around say 200 questions. And this question should appear in this examination. So inner story has been developed. The outer reality is the student appears for an examination and out of that, only 5 questions he can find are more relevant. And rest of the questions are absolutely irrelevant. So outer reality is completely different. So in that case, what happens is the unhappiness. So for a student, the unhappiness is what he feels there outside. Student is expecting, I'm going to get distinction, my CGPA will be 9.2, 9.5, 9.7. This is inner story which is built up. The outer reality is the student is getting 7.8 with 2 courses down. The outer reality is not matching with the inner story, and that is the reason the happiness is not created. Now, there can be a very simple thing. A husband is going from his office to home. The moment he reaches home, the wife offers a cup of garma garam chai. So inner story, aaj chai milni chahiye, is matching with outer reality. So it creates happiness. बहुत ही simple सा formula है, बहुत ही simple.
इनर स्टोरी अगर आउटर रियलिटी के साथ में मैच करती है, देन इन दैट केस द हैप्पीनेस इज क्रिएटेड। अभी जो मैथमेटिकल वाले ओरिएंटेशन लोग हैं तो वो तो बोलेंगे सर इक्वल टू तो अच्छा है, कुछ अलग सिंबल लगा के देखते हैं, माइट बी समथिंग डिफरेंट। चलिए देखते हैं, देयर कैन बी अदर सिंबल एंड दिस वन इज देयर। द आउटर रियलिटी इज समटाइम्स ग्रेटर देन इनर स्टोरी। ये क्या है? चलिए उसी एग्जांपल को लेते हैं। A student is appearing for examination, given the examination, expecting that I will get 9.1 CGPA. This is inner story, but the outer reality, when the result is declared, he got 9.45. Oh my God, the outer reality is much more than the inner story. Correct? So in that case, the happiness increases. It's not only happiness, but happiness increases. फॉर अ हस्बैंड एक्सपेक्टिंग आज शाम को बारिश हो रही है, चाय तो मिलनी ही चाहिए घर जाते ही साथ, एंड वाइफ ऑफर्स हिम नॉट ओनली चाय बट बिस्किट्स एंड समोसा। Oh my God, the outer reality is much greater than the inner story. So happiness is getting increased. Remember, happiness is what we are talking about, is a very lower level. But at the same time, getting that small moments of happiness is absolutely essential. So in this case, we have seen the outer reality is much more than the inner story. Remember that every moment of our life, there is some inner story which is going on. Inner story is continuously been going on. I'm delivering a webinar and my inner story at the same time which is going on is all my participants in this webinar are attentive. And if I find that only 4 people are attentive, remaining are not. So in that case, the happiness level goes down. So inner story has to match with the outer reality, and then we can create a happiness. Remember, we are talking about happiness as a state of mind. I've given you 2 formulas, 2 equations for the same. कभी कभी लगता है कि happiness, whether it happens by nature or somebody is going to give it to me. No, it's not like that. Happiness अगर inner state of mind है, then happiness is a choice. You have to choose it every day. You have to choose happiness every day. This is a very famous picture. All of you might have seen this. The student at number 1 is not very happy, and the student at number 3 is very happy. एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा. आई एम अ करियर काउंसलर and every day I meet with different parents and students. So it's a story of last month only, June, fag end of June. And one student came to me with a sweet box. He got 75 percentile and he's very happy that he's going to get admission in a nearby engineering college. He said, देखिए sir, लीजिए पेड़े लीजिए, I'm going to get admission in my nearby college with my choice of a branch. Okay, very happy, 75 percentile in CET. There is another student who came with a request for a career counseling because he's terribly worried. His score in CET is 99.1. And he's not very sure in which college he's going to get admission. Terribly worried. The parents are also worried. Because the expectations are something which are very high. With 99 also, the happiness is not there. With 75, there's a great happiness. So happiness is a choice and you have to choose it every day. क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ. सुबह उठते ही साथ खुद को उठते ही साथ बिल्कुल, the moment you wake up, give instructions to yourself that for today only, I am going to remain happy. आज मैं खुश रहने वाला हूं, आज मैं खुश रहने वाली हूं. खुद को इंस्ट्रक्शंस तो देखिए जैसे इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, इट गोज इनटू योर माइंड, अंदर चले जाएंगे. द माइंड विल कंटिन्यूअसली फोकस योर अटेंशन दैट ओके यू हैव टू रिमेन हैप्पी टुडे. ये टुडे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम लोग बोलते हैं कि मुझे जिंदगी भर के लिए हैप्पी रहना है, तो आपका दिमाग जो है वो शैतानी दिमाग है, विच विल पुट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. अरे पागल है ऐसे कोई?
किसी गूगल ने लिख दिया कोई वेबसाइट में या फिर किसी वेबिनार में हमने सुन लिया, तो आर वी गोइंग टू रिमेन हैप्पी फॉर अ लाइफ? द ब्रेन विल गो अगेंस्ट यू, सॉरी, योर माइंड विल गो अगेंस्ट यू, एंड इन दैट केस यू विल नेवर फाइंड हैप्पीनेस ओवर देयर. सो अगर हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ आज के लिए, देन दिमाग में चला जाएगा हाँ यार कल का देखा जाएगा, आज के लिए हैप्पी रहना. तो अगर आज के लिए हैप्पी रहना है, ब्रेन विल कंटिन्यूअसली गिव इंस्ट्रक्शंस बैक, बैक मेमोरी में जाके आपको इंस्ट्रक्शन देखते रहेगा कि आज के लिए आपको हैप्पी रहना है. हम लोग करते क्या है? द रिमोट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सेइंग रिमोट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज गिवन टू somebody else. somebody else मतलब हाँ मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, पड़ोस वाले हैं, मेरे टीचर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, और भी कोई रिलेटिव्स है, मेरे बॉस है, मेरा ऑफिस है. कोई नहीं रहेगा तो रास्ते में चलते चलते आने जाने वाले लोग. टुडे मॉर्निंग आई वाज कमिंग टू कॉलेज एंड आई गॉट स्टक अप इन अ ट्रैफिक. फॉर 20 minutes आई वाज देयर एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही जंक्शन में खड़े, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक. हाँ, यहाँ पे अगर वो रिमोट मैंने दूसरों के हाथ में दिया, क्योंकि मुझे पता है कि एक कार वाले ने अपनी गाड़ी अलग डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में पार्क कर दी, बिकॉज ऑफ विच द ट्रैफिक हैज बीन ब्लॉक्ड एंड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द सेम टाइम. तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे रिमोट दूसरों के हाथ में देना है तो उसको गाली गलौज करना है, झगड़ा करना है, कांच को नीचे करना है, चिल्लाना है. बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, मारपीट तक मौका चला गया. मुझे तो कांच ऊपर लेनी है, म्यूजिक सुनना है, अच्छा एंजॉय करना है. सो इट इज माई चॉइस, आई गेव अ चॉइस टू माई सेल्फ कि आज मैं हैप्पी लाइफ के ऊपर अगर मुझे वेबिनार देना है तो आई हैव टू रिमेन हैप्पी. तो रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया, चलता है 20 minutes लेट, क्या फर्क पड़ता है? बाद में किसी ने ट्रैफिक तो क्लियर करनी है, हो गया. सो दिस इज व्हाट इज चूजिंग दी हैप्पीनेस. अभी हम लोग बात करेंगे बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर. हैप्पी हार्मोन्स अगर हम लोग बात करते हैं दिमाग के, माइंड की, देन इट इज controlled by hormones. There are varieties of hormones, various types of hormones which are secreted in our body 24/7. Continuously hormones generate होते हैं. And what are those hormones which are responsible for creating happiness? जैसे हम लोग बोलते हैं चलो happy hormones. Happy hormones बोलते हैं, there are four: dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. There are four hormones which are happy hormones. These four hormones are basically generated with a happy level because of a few very simple things. बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं. One is food, the other is thought, then exercise, the way we live ourselves, lifestyles, and sometimes adding a little bit of meditation. हाँ, अगर इतनी सारी बात करनी है तो कुछ लोग बोलेंगे ये बुढ़ापे वाली बात कर रहे हैं यार, ये मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज क्या करनी है, अब हमारी तो उम्र हो चुकी है, हमें क्या करना है. चलिए देखते, अगर कुछ छोटा सा चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट वाला चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम लोग हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे. हम लोग बात करेंगे वन बाय वन. व्हाट आर दोस हैप्पी हार्मोन्स? नंबर वन इज डोपामाइन. डोपामाइन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉर्ड और मोटिवेशन. जब भी हमको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, डोपामाइन इज रिलीज्ड इन द बॉडी. व्हाट इज ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नेम्ड एज लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन. अब प्यार वाला हार्मोन कैन बी विथ एनीवन. So you can have a प्यार वाला हार्मोन kind of between husband, wife, friends, relatives, mom, dad, anyone. So oxytocin is basically responsible for that. Serotonin is having a very close relationship with emotions, learning, sleep patterns, basically keeping yourself awake from the sleep. That is very important. And endorphin is very, very essential for relieving the pain and is also responsible for reducing the stress. तो चाहे आपको नींद से जागना है, सीरोटोनिन से लेके अगर पेन को रिलीव करना है एंडोर्फिन तक, हाँ और सर, फिर अगर आपको मोटिवेशन है। चाहिए, डोपामाइन से लेके लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन. I request the participant to keep your mic muted. If you have some questions, I'll be happy to answer it. किसी को कुछ पूछना है? भैया
चलिए। Going good, sir. Going good. Please carry on. Going beautifully. Great. Thank you very much, sir. So let us look at the key benefits. डोपामाइन की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा दुनिया में लोग अगर कहाँ पे भाग रहे हैं ना, तो वो है डोपामाइन की तरफ। सबको चाहिए, दिन भर चाहिए। डोपामाइन इज समथिंग विच इज हैविंग वेरी क्लोज एसोसिएशन विद रिवॉर्ड्स। छोटा भी रिवॉर्ड मिल गया है तो आज मेरा कोर्स अच्छा रहा, आज लेक्चर मैंने अच्छी तरीके से सुना, आज के प्रोफेसर मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे अच्छे नंबर्स मिले, दिस इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है, पार्टी में गए, मूवीज देखने के लिए गए, चलो कुछ तो मोटिवेशन मिल गया मुझे। सो जीने का मोटिवेशन से लेके छोटा सा मोटिवेशन तक, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद डोपामाइन। हम लोग करते क्या है, वी ऑल्सो फाइंड मीनिंगफुल पीपल इन सर्च ऑफ डोपामाइन फॉर फाइंडिंग आउट प्लेजर। सो प्लेजर हम लोग बात करते हैं, तो प्लेजर इज एसोसिएटेड विद मेनी थिंग्स। अच्छा काम करती है, गाँव की है, और कोई प्रोडक्ट। माइक म्यूट करेंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। I request Dr. Ajay Sharma to kindly mute his audio. Ajay Sharma, sir. आ गए? Thank you, sir. Thank you. Yeah, sorry, Dr. Prafulla. Yeah, kindly go on. Yeah. Thank you. So dopamine is also is responsible for pleasure and also for focus. अगर dopamine level आपके body में अच्छा है, तो you will find that you are very much set towards goal. You have a better attention span. Your concentration level is also very high. Oxytocin अगर ज्यादा है, sorry, not ज्यादा है, appropriate में, then in that Ajay sir, excuse me. I muted him. Okay, अजय शर्मा सर को मैंने म्यूट कर दिया। ओके, सो ऑक्सीटोसिन लेवल अगर अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट मिलेगा वेरी क्लोज एसोसिएशन, बॉन्डिंग, वन टू वन बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, सोशल बॉन्डिंग आपको मिलेगा, ट्रस्ट लेवल एक अच्छा रहेगा, स्ट्रेस लेवल आपका रिड्यूस होता रहेगा। सीरोटोनिन अगर अच्छा है, देन सीरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूड रेगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जैसे ही हम नींद से जागते हैं, जैसे ही हम नींद से जागते, सीरोटोनिन इज रिलीज्ड। रोशनी हमने देखी, सनलाइट हमने देखा, तो सीरोटोनिन का फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके साथ में सीरोटोनिन इज ऑल्सो गेटिंग सिक्रेटेड बाय ईटिंग अ वेरी हेल्दी फूड। अच्छा आपने खाना खाया, सीरोटोनिन इज ऑल्सो देयर। तो डाइजेशन से लेके मॉनिटरिंग योर अवेकनिंग साइकिल, देन मूड रेगुलेशन, कीपिंग अ पॉजिटिव मूड, everything is being monitored by serotonin. Endorphin भी जरूरी है। Endorphin is a natural painkiller and it is also responsible for stress reduction. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, तो ये काफी जरूरी है। Sometimes a feeling of euphoria, feeling very high, that is also essential whenever we have endorphins with us. एक छोटा सा एक पॉइंट करना चाहूंगा कि हम लोग बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है सर, ये डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छा है। नहीं, तो ज्यादा वाला नहीं चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल पे चाहिए। इफ दीज हार्मोन लेवल्स गेट्स इंक्रीज अबव द रिक्वायर्ड लेवल, देन आल्सो इट इज वेरी डेंजरस। लेट अस टॉक अबाउट डोपामाइन। इफ द डोपामाइन लेवल गेट्स इंक्रीज्ड, देन इन दैट केस आप जिस व्यक्ति का डोपामाइन लेवल बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या आप उनके सामने चल रहा है। मराठीमध्ये सांगायचं तो भास व्हायला लागते, दुनिया कुछ अलग तरीके से उनको दिखाई देने लगती है, बहुत ज्यादा हो गया तो। अगर डोपामाइन लेवल बहुत कम है, तो योर बॉडी मूवमेंट्स आर स्टक अप। जिनका डोपामाइन लेवल कम है, उनको एक कदम भी आगे डालना मुश्किल हो जाता है। हाथ से पानी का ग्लास उठाना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, अगर डोपामाइन लेवल कम है। सो कम भी नहीं चलेगा, ज्यादा भी नहीं चलेगा, अप्रोप्रिएट लेवल पे है। सो दिस आर द which are there when we talked about all those four hormones. गलत तरीके क्या है? सबसे पहले गलत से दिखेंगे, उसके बाद में देखेंगे सही क्या है। Incorrect ways, people are addicted to tremendous use of technology, continuously on the technology front. So this is releasing dopamine a lot, but at the same time, this is not the correct way of releasing dopamine. Sometimes drug addiction, छोटा ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी चीज होगी, छोटे लेवल पे बात करते हैं डोपामाइन कैसे रिलीज होता है।
किसी को सुट्टा मारना है, किसी को अल्कोहल लेना है, और किसी को है गांजा, किसी को है गुटखा, ये भी है एडिक्शन। ऑल दिस थिंग्स आर बूस्टिंग द लेवल ऑफ डोपामाइन। जो लोग ये सारे चीजें करती है, दे आर इन सर्च ऑफ डोपामाइन। मैंने जैसे बोला कि चारों जो हैप्पी हार्मोन्स है, सबसे ज्यादा लोग पीछे भाग रहे डोपामाइन के। जंक फूड क्यों खा रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो इन सर्च ऑफ डोपामाइन है। गैम्बलिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलीजिंग डोपामाइन। ये सारी चीजें आपको डोपामाइन रिलीज करेगी, लेकिन इनकरेक्ट वे, बिकॉज दिस डोपामाइन लेवल increase in your body is very dangerous in long run. So avoid these ways which are directly releasing dopamine in the body. जंक फूड की थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे। जंक फूड कैन बी वेरी सिंपल थिंग। पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है, कुछ नहीं तो मैगी है, चिप्स है, कुरकुरे है, आम जिंदगी में खाने वाली चीज। थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, क्या 20 साल पहले ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में थी? क्या 25 साल पहले थी? हमारे दादा दादी नाना नानी क्या ये सारी चीजें खाया करते थे? बिल्कुल नहीं है, उन्होंने नहीं खाई। जो हमारे माता पिता थे, उन्होंने शायद कभी कभार जिंदगी में जंक फूड खाया रहेगा। बट लुक एट नाउ, नाउ दिस जंक फूड हैबिट इज सो increased, and now the mobile applications, we are ordering these, people are ordering junk foods at their home. Avoid it. Instead of that, dopamine can be increased to the appropriate level by some correct ways. I will show you the correct ways also. ऑक्सीटोसिन कैसे इनकरेक्ट वे से रिलीज करते हैं लोग? इनअप्रोप्रिएट फिजिकल टच, किसी को फिजिकली टच किया या फिर टच करने का विजुअलाइजेशन किया, किसी को फॉल्स प्रोमिसेस कर दिए। समटाइम्स पीपल यूज सप्लीमेंट्स, ड्रग सप्लीमेंट्स विच आर एब्सोल्युटली डेंजरस। सीरोटोनिन बैन किया गया एक ड्रग्स को, एक्सटेसी जिसे बोलते हैं, एक्सटेसी लेने वाले लोग सीरोटोनिन के पीछे भागते हैं। Some people are depressed, and because of which the psychiatrists or doctors suggest them antidepressants. These antidepressants are also releasing serotonin, but at the end of the story, if I look at it, these are not very good. Can anybody tell me what is binge eating? What is that? किसी को पता है? Something like, sir, if I'm not mistaken, indiscriminately eating Okay. without any control. हाँ, good, good. और किसी को कुछ बोलना है? बिंज ईटिंग क्या होता है? It's like eating marathon kind of a thing. हाँ, that's right, absolutely right. हमने जंक फूड की बात की डोपामाइन पे, और सेरोटोनिन के लिए हम लोग बात करेंगे बिंज ईटिंग। बहुत सारा खाना है बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, कम से कम टाइम में फटाफट फटाफट खा लेना है, दिस इज बिंज ईटिंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग वॉचिंग मूवीज, गोइंग आउट, रनिंग, कैचिंग अ बस, कैचिंग अ प्लेन, कुछ नहीं है तो टीवी देखते देखते, मैच देखते देखते भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, बिंज ईटिंग। दिस इज रिलीजिंग सीरोटोनिन, लेकिन गलत तरीके से। कुछ लोग को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज हमने 10,000 स्टेप चले, कल 15,000 है, परसों 20,000 है। अरे नहीं, घुटने काम से निकल जाएंगे। एंडोर्फिन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से। Endorphin boosting drugs are also not very good things. And extreme level, there are people who are doing harm to themselves, and because of which the endorphins are released. Absolutely incorrect. अगर ये incorrect है तो correct क्या है? अगर हम डोपामाइन की बात करेंगे, a good level of exercise is absolutely essential to release dopamine. Then a healthy diet, जैसे हमने बात की जंक फूड, no junk food. A healthy diet is absolutely essential. सो यू कैन डू गूगल। आज बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा हेल्थी डाइट पे, आपको फ्रूट्स खाना है, नट्स खाना, सब लोग बोलेंगे, सब कुछ अवेलेबल है, तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल गोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोपामाइन के लिए। छोटे छोटे गोल्स रखिए और देन देखिए कि आपका डोपामाइन लेवल किस तरीके से बूस्ट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय स्मॉल गोल्स? दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे कैन कीप अ स्मॉल गोल कि दिन भर वो ईमेल वाला चक्कर चलता रहता है। आज 1 घंटे में मुझे सारे मेल चेकआउट करने, सारे लोगों को रिप्लाई करना है, एंड देन रिमेनिंग टाइम आई कैन फोकस। अचीव करो, टाइम लगाओ, 55 मिनट्स, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स, कितने शॉर्ट स्पैन में सारे के सारे मेल चेक करेंगे। स्मॉल गोल, छोटा सा गोल आज रख सकते हैं कि आज मेरे टेबल पे जितने भी पेपर्स है सारे के सारे क्लीन, नो पेपर 5 o'clock, एंड देन आई विल गो होम। स्मॉल गोल। आज मुझे ना एक प्रोग्रामिंग सीखना है, छोटा सा गोल।
मुझे एक किताब पढ़नी है, बुक्स रीडिंग है, स्मॉल गोल। जैसे ही आप उस गोल को अचीव करते हो, डोपामाइन गेट्स रिलीज्ड। यूज सम स्मूथिंग म्यूजिक विच यू लाइक, नॉट वेरी हाई डीजे वाला म्यूजिक नहीं है, सिंपल सूदिंग म्यूजिक। ये भी आपको डोपामाइन लेवल इंक्रीज करेगा टू अ सर्टेन लेवल। वर्ड ऑफ कॉशन, स्टार मार्क कंडीशंस अप्लाई। म्यूजिक सुनते वक्त वो कानों में जो डालते हैं यार, वो मत डालिए। बहुत सारी चीजें आजकल कानों में डालने वाली, एयरपॉड से लेके, ईयरबड से लेके, हेडफोन से लेके, बहुत सारी चीजें। आराम से सुनिए। जितना प्रेशर आप यहाँ पे डालोगे, दिमाग उतना ही काम करना बंद करेगा। मेडिटेशन, छोटा सा हल्का सा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। अगर टाइम नहीं है, हफ्ते में एक बार कीजिए। देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज ऑफ मेडिटेशन, पीपल आर नॉट नोइंग। 1 मिनट वाला भी मेडिटेशन होता है, 1 मिनट मेडिटेशन, ये भी कर सकते हैं। चलिए, ऑक्सीटोसिन, फिजिकल टच, लेकिन ये अप्रोप्रिएट फिजिकल टच है, किसी को हक करना है। एक पिताजी है और उनकी छोटी सी बच्ची है। जैसे ही वो पिताजी घर में चले जाते, छोटी सी बच्ची दौड़ के आती है और पापा को हक करती है। इमीडिएट ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फॉर बोथ ऑफ देम। छोटी बच्ची के लिए भी है और डैडी के लिए भी। कितनी छोटी छोटी चीजें। तो ये भी सारी चीजें आपको पूरी की पूरी ऑक्सीटोसिन के लिए लेवल बढ़ाने वाली चीजें। देन कम्स सोशल इंटरेक्शंस। इट कैन बी मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस का मतलब ये नहीं कि आज शाम को पार्टी करेंगे, नो। सोशल इंटरेक्शंस कैन बी फॉर अ सोशल कॉज, या फिर बैठ के सिर्फ बातें लड़ाना है। यार बहुत दिन हो गए किसी से दोस्तों को मिले नहीं, घर में जाके बैठिए, बातें कीजिए, विद फैमिली एंजॉय कीजिए। फॉर दोज हु आर स्टूडेंट्स, दे कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद देयर पेरेंट्स। आज डिसाइड ही कर लो, आज ना मुझे मेरे पापा के साथ में 10 मिनट बात करनी है, उनकी जिंदगी के बारे में जानना है। एक बार करके तो देखो, योर ऑक्सीटोसिन लेवल विल इंक्रीज एंड योर फादर विल रिमेंबर दैट डे फॉर एवर हिज लाइफ। आज मेरे बेटे ने मुझसे खुद होके बात की कि 10 मिनट तक आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। स्पेशली जेनजी जो है, यंग जनरेशन, जनरेशन जी, दे हैव टू डू इट। बहुत जरूरी है। इफ यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ योर पेरेंट्स, आई एम हैप्पी। अगर नहीं है, जरूर कीजिएगा। एक्टिव लिसनिंग के ऊपर तो मैनेजमेंट ने, आज हम लोग थोड़ी सुनने की कैपेसिटी कम कर चुके, बढ़ाइए। एक्टिवली लिसन कीजिए, क्या चल रहा है, दूसरे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सुन के तो लीजिए। सीरोटोनिन, जैसे मैंने बात की, सनलाइट से शुरू। जैसे ही आप जाग गए, सनलाइट, सीरोटोनिन मिलता है। जो लोग स्पेशली क्लोज चेम्बर में, ग्लास वाली बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, आज बारिश हो रही है, आज फॉग है, आज सनलाइट है, आज बाहर ठंड है, पता नहीं, क्योंकि हम लोग एसी में बैठे हैं, तो उनके लिए सेरोटोनिन लेवल डाउन है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके देखिए तो सही बाहर क्या चल रहा है। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट हमने डोपामाइन के लिए भी दिया था, सेरोटोनिन के लिए भी हेल्दी डाइट काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज आपको जरूर करना है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर जरूर निकालिए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लगभग 2 घंटे का पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। हमें तो आज पता ही नहीं है कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं। किसी को भी पूछो, हाँ सर, आई एम वेरी हाईली पॉजिटिव, चलो 4-5 सेंटेंस पॉजिटिवली बात करके देखो, एंड देन इट कम्स फ्रॉम दैट पर्सन कि 90% ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, क्योंकि हमें पता नहीं कि पॉजिटिविटी क्या है। सोशल इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है, पॉजिटिवली कीजिए सीरोटोनिन बूस्ट करने के लिए, जैसे हमने ऑक्सीटोसिन के लिए बात की थी। अभी एक्सरसाइज वाला रिपीट होता है एंडोर्फिन में, म्यूजिक वाला रिपोर्ट हो रहा है डोपामाइन और एंडोर्फिन में। लाफ्टर, हम लोग तो हंसना ही भूल गए। छोटे बच्चों को देखिए कितने हंसते हैं, वेरी वेरी गुड। बच्चा जिसको एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कितना हंसता है। और हम लोग हंसने के लिए लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, फाइंड आउट दोज मोमेंट्स, हंसना तो शुरू करो। एंडोर्फिन के लिए करो यार, किसी के लिए मत करो, एंडोर्फिन के लिए करो। Along with that, we can have acupuncture sometimes, dance, dark chocolate. Dark chocolate is also endorphin releasing kind of therapy, I can say. I've used the word therapy क्योंकि उसको थेरेपी की तरह ही यूज करो। डार्क चॉकलेट का मतलब ये नहीं कि सर ने आज के वेबिनार में बोल दिया आज हम लोग 5 किलो डार्क चॉकलेट लेके हर दिन एक खाना है। नहीं, महीने में एक आध बार खा लो, कोई चीज, कोई बात नहीं। जब भी आपको लगता है कि फीलिंग लो है, पेन बॉडी में, डार्क चॉकलेट विल हेल्प। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इनकरेक्ट वे और करेक्ट वेज। आगे चलते हैं क्विकली।
हाँ, ये बड़ी चीज है। Now, when we talk about happiness and state of mind, we should also think about the universe. अबे यूनिवर्स कहाँ से आ गया? देखते यूनिवर्स कहाँ से आ गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू अंडरस्टैंड। हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें क्या चल रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं, एक छोटा सा वीडियो है, चलेगा। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबको बहुत प्यारा लगता है चांद। चांद से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स है कितना बड़ा। 3500 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ चांद। हमें लगता है कि हमें यहाँ से शायद चांद दिखाई देगा, तारे दिखाई दिए। तो चलो, यूनिवर्स शायद जो हमें दिखाई दे रहा है आपको से वही है, लेकिन वैसा तो है नहीं। मार्स तक आ गए। मार्स से कुछ 7000, तो थोड़ा बढ़ा गया। अभी भी अर्थ नहीं है। वेनस 12000, 12500। ये बहुत अच्छा है। 13000 डायमीटर। लेकिन यहाँ पे मुझे इंडिया दिखाई नहीं दे रहा है। पुणे तो बिल्कुल भी नहीं यार, पता नहीं क्या है। वो छोटी सी चीज है कहीं तो भी पुणे। एंड इवेंचुअली व्हेन वी लुक एट ऑल स्टार्स प्लैनेट्स, बहुत बड़े 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 साइज के, वो काफी बड़े हैं और उनका डिस्टेंस भी उतना ही बड़ा है। हमें तो लगता है कि हम धरती पे है, चांद देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, बस। दुनिया तो सिर्फ इतनी ही है। लेकिन थोड़ा देखिए तो सही, डायमीटर्स कितने बढ़ा, हम जुपिटर तक आ गए। जुपिटर लाखों में आ गया अभी डायमीटर। डायमीटर इज कंटिन्यूअसली गेटिंग इंक्रीज नाउ। ओ माय गॉड, यहाँ पे आ गए भाई सन। कंपैरिजन करके देखिए, धरती कहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है। So we are only looking at the planets which are very close to sun, our sun. बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। And ये सारे जो हम प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। They are very closely associated with each other, highly connected. ये अब एक crystal star लाखों में है। हम्म, थोड़ा मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। ओके, तो डायमीटर इतना बड़ा होते जा रहा है कि वो 13000 वाला जो अर्थ है वो तो काफी पीछे छोड़ गया। अभी तो अर्थ मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे चला गया, क्योंकि इतने सारे हम प्लैनेट्स देख रहे हैं। माय गुडनेस, नाउ वी आर लुकिंग एट समथिंग where we do not count the distance in terms of kilometers. We start counting in terms of a light day, and eventually we count in terms of light years. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, इसको एक लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर में अभी तो मुझे बाकी के कुछ स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे। यूनिवर्स इज रियली रियली बिग। क्योंकि अभी हम अपनी गैलेक्सी की तरफ देखते हैं, क्या हमारी गैलेक्सी दिखाई दे रही है? हाँ, कुछ कुछ तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत। पता नहीं अर्थ कहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अभी लाइट ईयर्स में जा रहे हैं। देर आर मेनी 100 बिलियन स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। देखिए उनके प्लैनेट्स कितने रहेंगे। तो इतने सारे हैं, billions of stars and billions of planets revolving around those stars. And then comes a Milky Way. The sun goes around every 200 million years on the Milky Way. ये एक मिल्की वे हो गया। थोड़ा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्स है कितना बड़ा, देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसमें काफी सारे हैं, मेनी गैलेक्सीज आर देयर। इतनी सारी गैलेक्सीज, हम एक गैलेक्सी देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। इतनी ज्यादा गैलेक्सीज और इतनी ज्यादा गैलेक्सीज को मिलकर क्या अब हम यूनिवर्स बना सकते हैं? चलिए देखते हैं।
शायद कुछ दिखाई दे रहा है? This is super cluster of galaxies. Our Milky Way is one of them. Super cluster of galaxies, something looking like a web. This is called a cosmic web. Billions and billions of galaxies. Now we are not talking about stars or planets, and billions of galaxies. और ये सब मिला के होता है यूनिवर्स. This is universe. लेकिन क्या एक यूनिवर्स है? नहीं है. People, scientists believe that there are other universes also existing with different laws of nature. हम लोग बात करें laws of nature. This is called as multiverse. चलिए यहाँ पे हमने रोक दिया. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पे हमने बात किया कितना बड़ा है यूनिवर्स, कितना बड़ा है और हम कितने छोटे. झगड़ा करते रहते यार. कभी झगड़ा क्या है? फैमिली में झगड़ा है, पड़ोस वाला झगड़ा है, ऑफिस टू ऑफिस झगड़ा है, कंपनी टू कंपनी झगड़ा है. कभी बोलते आम्ही पुणेकर, तुम्ही मुंबईकर, तू कन्नडा, तू तमिल, तू पंजाबी. हम लोग बात करते मी भारतीय, तू कैनेडियन, तू अमेरिकन, तू मलाया, तू अमुक धमुक. सो किसी भी चीज को लेके हम लोग झगड़ा करते रहते हैं. लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम अर्थ में भी देख नहीं सकते. तो कहां से आ गया फिर? कहां पे इंडिया है, कहां पे पुणे है, कहां पे हम हैं? इतना बड़ा यूनिवर्स चलता है तो यूनिवर्स के लिए लॉज भी है. सभी सब कुछ कंट्रोल्ड है. कभी ऐसा देखा सुना कि आज का दिन ना कुछ बड़ा हो गया, आज का दिन 45 घंटे का हो गया, कल ना सूरज दक्षिण से उगने वाला है, बारिश जमीन से आसमान की तरफ चलने वाली है? कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यूनिवर्सल लॉज. हम लोग अभी भी बहुत कम लॉज ढूंढ पा रहे हैं. So far, there are 12 laws of universe. You can go through it. Google कर सकते हैं बाद में. And I'm not here to keep on explaining all those laws, but there are some laws which I can explain you very quickly. चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिवाइन वननेस. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग. लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिवाइन वननेस. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. हम लोग आज बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल आईओटी, देन डिजिटल ट्विन, सो मेनी थिंग, इंडस्ट्री 4.0, सारी टेक्नोलॉजी. लिविंग को, नॉन लिविंग को हम लोग सब लोग एक वेब प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं. ऑलरेडी वेब में है, कॉस्मिक वेब में सब कुछ कनेक्टेड है. द मोमेंट यू थिंक ऑफ एनीथिंग, योर थॉट इज गेटिंग कनेक्टेड टू दैट थिंग. मेरे पास यहाँ पे कुछ घड़ी है, बाजू में निकाल के रखिए टाइम देखने के लिए. द मोमेंट आई सेड आई रियली लव माई वॉच, द वॉच रिस्पॉन्ड्स टू माई वाइब्रेशंस. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग. आप ये बात नहीं कर सकते कि ये तो कहाँ जिंदा है, इसको क्या कुछ भी बोलो, गाली दो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं चलता है. Everything is connected to everything, and there are vibrations which are responsible for connecting these things. Now, the scientists are exploring this in much more detail and working on that. और ये क्या है? बीच में चलते चलते सीसीटीवी कैमरा आ गया. थोड़ा सोचिए कि एक सीसीटीवी कैमरा थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला है. एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी ये है कि ये आपका दिमाग के अंदर घुस के आपके विचारों को भी पढ़ सकता है. कितना कॉशन हो गया हम लोग. किसी नए बिल्डिंग में जाते हैं, जाते ही साथ एंट्रेंस में लिखा है यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, और लिखा है आगे जाके स्माइल, सीसीटीवी कैमरास आर वाचिंग यू. सो वी बिकम कॉशियस. ओके, कैमरास आर वाचिंग मी, सो वी बिकम वेरी कॉशियस. थोड़ा ऐसे डट के चलेंगे. थोड़ा सोचिए, उसी बिल्डिंग में आपको जाना है जहां पे लिखा है प्लीज बी केयरफुल, आवर सीसीटीवी कैमरास आर रीडिंग योर माइंड. Oh my God, many of the people will never enter into that building. मेरा माइंड पढ़ रहे. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैमरा ऑलरेडी लग चुका है. द गॉड हैज ऑलरेडी प्लेस्ड दिस कैमरा. जो लोग गॉड को मानते हैं, नहीं कोई बात नहीं, यूनिवर्स हैज प्लेस्ड दिस कैमरा. दिस कैमरा इज ऑलरेडी रीडिंग योर माइंड. whatever you think, whatever you do, everything is getting monitored. And you are going to get the results of everything. सोचोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा.
किसी को गाली दोगे मन ही मन तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा, किसी को अप्रिशिएट करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, गोल्स को फोकस करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, हेल्थ को फोकस करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। एवरीथिंग इज गेटिंग मॉनिटर्ड बिकॉज दिस इज सीसीटीवी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ने सीसीटीवी बिठा के रखा है, कहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। सोचना शुरू तो करो, ऑटोमेटिक कैमरा विल कैप्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग मॉनिटर्ड। तो आज से, अभी से, आज का दिन बहुत अच्छा है, 5 जुलाई 11:25 पे हमने बात की, 27 मिनट में दिमाग में रखना है। आज का मुहूर्त भी काफी अच्छा है। और राजू कुमार सर ने कुछ पंडित जी से बात की थी कि चलो अच्छे मुहूर्त पे करवा दे देगा, तो ये अच्छा मुहूर्त पूरा दिमाग में रखना है। आज क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। एंड वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, चूज देम वेरी वाइजली। होता यह है कि चार दोस्त मिलके बोलते कि चलो शॉपिंग के लिए चलते, शॉपिंग मॉल में जाते 2 व्हीलर लेके। तो पूरी शॉपिंग वॉपिंग करते, फिर वो पार्किंग पार्किंग हमेशा नीचे होता है शॉपिंग मॉल में, बिल्कुल बेसमेंट में। तो बेसमेंट लेवल 2 पे चले जाते, देखते रहा बहुत 1000 में गाड़ियां दिखाई दे रही, पता नहीं उसकी गाड़ी कौन से लेन में पार्क कर दी है। तो एक दोस्त बोलता है, यार मेरी खटारा पता नहीं कहाँ पे दिखाई दे रही है तुमको। चूज वर्ड्स वेरी अप्रोप्रिएटली, पावरफुली। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। क्या बोला उसने, यार मेरी खटारा कहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही उसने सोचा कि उसकी बाइक उसके लिए खटारा ही बनने वाली है, वॉट एवर यू से इज गोइंग टू गेट हैपन। आप बोलोगे आई लव माई बाइक, बाइक विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड यू। पानी में बाइक डालोगे तो भी बंद नहीं होगी। आप बोलोगे खटारा, नई बाइक लो, दूसरे दिन गैरेज लेके जाना पड़ेगा। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, चूज देम एब्सोल्युटली वाइजली। 4 बार सोचो कि क्या मैं बात कर रहा हूं। जो आदमी सोचता है कि दुनिया पागल लोगों से भरी है, सिर्फ उसी के जीवन में पागल लोग आएंगे। वापस रिपीट कर दो, जो आदमी सोचेगा दुनिया पागल लोगों से भरी हुई है, उसी के जीवन में पागल लोग आएंगे। जो आदमी सोचेगा पैसा क्या है, आज नहीं है, कल है, परसों नहीं है, उसके जीवन में पैसा आज कल में अप डाउन होता रहेगा। जो सोचेगा पैसा बहुत बुरी चीज होती है, उसके लिए पैसा हमेशा बुरी चीज होती है। उसके बच्चे पैसे उड़ा देंगे, उसके घर में चोरी हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी, क्योंकि उसने सोचा है पैसा बुरी चीज है। जैसा ही आप सोचोगे, जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, वही वर्ड्स आपके लिए बहुत 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 शक्तिशाली है। नेक्स्ट टाइम when you choose the words, choose them very very appropriately. बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एंड दिस हैज बीन प्रूवन recently, just 2-3 years back. Many of you might have gone through this research outcome that everything is vibrating, and those vibrations can be converted into a mass can be converted into vibrations. So this is naturally what is happening around us. Everything is getting vibrating. इसका मतलब ये भी है कि हर साउंड, हर व्यक्ति, हर चीज, थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, विल्स, सब कुछ एक वाइब्रेशन है। मैं अगर सोचता हूं कि आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्सीलेंट ट्रेनर, दीज आर दी वाइब्रेशंस व्हिच आई हैव लेफ्ट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या बोलेगा, तथास्तु। जिनको मतलब पता है तथास्तु इज वॉट एवर यू से इट इज गोइंग टू हैपन। Universe will always respond to the vibrations. So what kind of vibrations you are creating, that is really very very important. If you are creating happy vibrations, helping vibrations, joyful vibrations, meaningful vibrations, helping vibrations, then the universe will also respond back those vibrations to you. Your dream will be fulfilled, you will fill with joy. So definitely this vibrations is absolutely essential. हमारे घर में होता क्या है वो भी देखते हैं। देर आर सर्टन होम्स जहां पे हमने देखा है कि झगड़ा होते रहता है। शाम को जाते साथ टीवी चलेगा, टीवी पे सीरियल चलेंगे, न्यूज देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, जोर से चिल्लाएंगे। ऑल दीज आर निगेटिव वाइब्रेशंस विच आर क्रिएटेड। सीरियल देखने वाले लोग जो भी टीवी सीरियल देखते हैं, 101% नेगेटिव वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड एट योर होम। कोई भी सीरियल पॉजिटिवली ओरिएंटेड नहीं है। सास बहू वाले लोग, कुछ भी लोग, न्यूज देखने वाले 90% ऑफ द न्यूज आर नेगेटिव। बी वेरी वेरी चूजी इन वॉचिंग अ टीवी। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट वॉच द टीवी। क्या देखना है, कुछ कॉमेडी सीरियल देखना है, मीनिंगफुल कुछ देखना है, डिस्कवरी देखना है, चूज इट वेरी वाइजली। घर में हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग।
आज अगर झगड़ा किया, those vibrations are going to remain in your home, not only for today, might be for tomorrow, might be for next month, might be for next year. Choose them very wisely. कितने नेगेटिव वाइब्रेशंस घर में क्रिएट हो रहे, गाली गलौज करने से लेके, झगड़ा करने से लेके, गुस्सा करने से लेके, देयर आर लॉट मेनी नेगेटिव इमोशंस, इजंट इट? हेट करना है, जेलसी करना है, ग्रीड है, all these are negative vibrations. If those vibrations are created at home, the home is not a home, it becomes a negatively charged house. I hope you got the meaning. एक बिल्डिंग है, हाउस, जो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपको, आपकी फैमिली को, जहां पे भी आप रहते हैं, सारे के सारे पॉजिटिवली वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, ये बात। Whatever you attract in your mind is going to get manifested. Manifested is come into reality. Of course, conditions apply. वो छोटा वाला स्टार मार्क जरूर है। कोई बोलेगा कि मुझे ना, मैं ऐसा अट्रैक्ट कर, आंखें बंद, आंखें बंद मैं अट्रैक्ट करता हूँ कि आई विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। आंखें खोल दी, हो गया प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं होता है। Law of attraction is required to be followed judiciously, is required to be understood properly. But for this webinar being a very short one, I'll tell you that keep attracting good things in your life. कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम अट्रैक्ट क्या करते हैं, तो थोड़ा सोचिए तो सही, आज दिन भर में हमने अट्रैक्ट क्या किया। कोई लोग ऑफिस में जाते साथ बोलते हैं आज ना वो फालतू बकवास वाला मीटिंग चलेगा, अट्रैक्ट कर दिया, बकवास मीटिंग। आज ना बॉस तो जरूर फायर करेगा, प्रोजेक्ट डिलेड है, तो क्या अट्रैक्ट किया? बॉस, फायर, डिले, बोरिंग मीटिंग, सारी चीजें। जिंदगी ना ऐसे ही गुजर रही है चलेगा। भैंसों की तरह काम करो, बैलों की तरह काम करो, गधे की तरह काम करो, तो भैंस बैल गधे ही जिंदगी बनने वाली है। सो वॉट एवर यू अट्रैक्ट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और भी एक बहुत जरूरी चीज है, इसका ही एक्चुअल मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट बताएंगे, की तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. You are the creator of your life. So whatever happens in your life, you are responsible because you already have attracted those things. किसी को ब्लेम करके क्या फायदा है? मैंने ही अट्रैक्ट किया है, इसीलिए मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। सच में बोलता हूँ, मैंने अट्रैक्ट किया कि आई विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेनर, आई विल बिकम अ पर्सन हु विल बी कंट्रीब्यूटिंग द नॉलेज इन द सोसाइटी, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। अट्रैक्ट किया मैंने 4 साल पहले। जैसे ही अट्रैक्ट किया, 2 साल में मेरे कोर्सेस 100 कंट्रीज तक पहुंचे। मेरे स्टूडेंट है 101 कंट्रीज में, मेरे स्टूडेंट है ऑल अक्रॉस इंडिया। देयर आर क्लाइंट्स, अलग अलग लोग बुलाते, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, फिजिकल वर्चुअल जाके, कुछ ना कुछ तो मैं शेयर करता रहता हूँ। दिस इज वन ऑफ देम, टुडेज वेबिनार। सो दिस इज पावर ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा टाइम भी दे दो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। ये इंस्पायर्ड एक्शन को थोड़ा आगे लेते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को भी थोड़ा आगे लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? वट एवर यू सो यू आर गोइंग टू रिपीट। आज जो बोओगे उसी को पाओगे, इतना सिंपल है। आज आपने प्यार दिया है लोगों को, तो कुछ दिनों के बाद में आपको प्यार ही मिलेगा। तो लोगों को आपने गाली दी तो गाली ही मिलेगी। वैसा ही है, जो आप दूसरों को दोगे, जो बीज लगाओगे, उसी तरीके का पौधा आएगा। आपने अमरूद का बीज लगाया है और सोच रहे हो कि मुझे ना आम का पेड़ लगना चाहिए, उसके ऊपर आम लगने चाहिए और अमरूद भी लगने चाहिए और चीकू भी लगने चाहिए और अंजीर भी आनी चाहिए, तो नहीं आएंगे। दिस इज सिंपल। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वेरी क्विक टिप्स। पहला है कि बी थैंकफुल। इसका बेनिफिट क्या है मैं बोलता हूँ। बी थैंकफुल इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। आज से आपको करना ही है, किसको थैंक यू बोलना है, ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वाला चीज ये है, बहुत सारे लोगों को हम थैंक यू बोल सकते हैं। कभी अपनी माँ को थैंक यू बोल के देखा है? अपने पिताजी को थैंक यू बोल के देखा है? इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। हाँ, मेरी उम्र 50 है, मेरी उम्र 40 है, मेरी उम्र 60 है, फॉरगेट अबाउट दैट। कब थैंक यू बोला था? कभी नहीं बोलते हम लोग तो। आज मुझे अच्छा खाना मिला, खाने को तो थैंक यू बोल के देखो। मुझे अच्छी जॉब चल रही है, मेरी जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई है, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू बोलने से बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो, जिस चीज को आप थैंक यू बोलते हो, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। अगर आपने बोला कि हाँ आई रियली लव दिस फ्रूट्स,
यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, आपको अच्छे अच्छे फल खाने को मिलेंगे। उसके लिए कोई नई चीज तो करने वाली है नहीं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा है फ्रूट वाला ठेला लेके बैठा है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे बहुत अच्छे फ्रूट्स है, अनानास है, मैंगो है, एप्पल है, और आप क्या कितने अच्छे फ्रूट्स लग रहे हैं। आई एम थैंकफुल कि मुझे भी फ्रूट्स खाने को मिले, मैंने भी आज खाए, बी थैंकफुल। जैसे आप थैंक यू बोलोगे, वही चीज आपको बार बार मिलती रहेगी। हम लोग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, थैंक यू। अभी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राजकमल जी, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? लेट मी म्यूट। ओके, आई हैव म्यूटेड। हाँ, तो हम लोग थैंक यू की बात करें। जिस चीज को आप थैंक यू बोलोगे, उस चीज को आपको वापस आपकी जिंदगी में बार बार आना है। जैसे थैंक यू बोलोगे, उसी चीज को वापस पाओगे। रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जिस व्यक्ति को आप थैंक यू बोलोगे, आप मन ही मन में बोलोगे तो भी चलेगा, मुंह पे जाके बोलने की जरूरत नहीं। हर दिन जाकर माँ थैंक यू वेरी मच, कोई जरूरत नहीं, अंदर से तो बोलो, आई एम थैंकफुल टू माई मॉम because of which I have been groomed to this level. I am thankful to my job because I am getting good salary out of it. I am thankful to my boss, कितना भी झगड़ा। थैंक यू तो बोलो, जिस चीज को थैंक यू बोलोगे उसी चीज को इंप्रूव करो। उसके साथ में और एक चीज है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एप्रिसिएशन। ये भी हम लोग नहीं कर रहे। किसी के घर में चले गए, उन्होंने खाना बनाया, एप्रिशिएट तो करो, और सच्चा वाला एप्रिशिएट करो। सब्जी में नमक कम है तो ये मत बोलो कि आज अपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, तुरंत पकड़ लेंगे कि झूठ बोल रहे। 4 चीजें परोसी है, उसमें से एक तो चीज अच्छी लगी, कुछ नहीं तो उन्होंने आपको बुलाया, इसके लिए अप्रिशिएट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। थैंक यू का मतलब है हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी चीज की, हमें बहुत रिलीफ मिला, हमें बहुत आनंद आ रहा है। दिस इज ऑल्सो थैंक यू। अप्रिशिएट तो करो कि ये चीज बहुत अच्छी थी, आपने इतने दिनों के बाद में याद किया। अप्रिशिएट करो हर चीज को जो आपको दिखाई दे रही है। रास्ते से जा रहे हो, बाजू में कुछ छोटे छोटे पौधे, उनको फूल लगे बहुत अच्छे, फूलों की भी तारीफ कर दो मन ही मन में। क्या फर्क पड़ता है, किसको समझ में आया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फूलों की तारीफ करो, उतने अच्छे अच्छे रंग आपके जीवन में आएंगे, अच्छे अच्छे फूल आपके जीवन में आएंगे, अच्छी खुशबू आपके जीवन में आएंगी। हर चीज को अप्रिशिएट करना है, करके तो देखो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ। आई एम वेरी लकी दैट माय स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद मी इवन आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद में भी मेरे स्टूडेंट मुझे फोन करके बोलते हैं, सर आपका कैसा चल रहा है, मेरे घर में ना मेरी बीवी का झगड़ा होता है, तो कुछ गाइडेंस करो। मैं बोलता हूँ 40 का हो गया तू, अभी क्या बीवी के साथ झगड़ा, मैं क्या करूंगा गाइडेंस, तू तो मेरा स्टूडेंट रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो मैं उनको अप्रिशिएट करता रहता हूँ कि अरे हाँ वेरी गुड, दे आर गिवन मी अ कॉल। घर में आते हैं, अच्छा लगता है। सो पावर ऑफ एप्रिसिएशन इज वेरी वेरी पावरफुल, आई विल से। पावर ही बहुत पावरफुल है। अप्रिसिएट करना सीख लो। मैं आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स दे, वेरी वेरी एसेंशियल, एब्सोल्युटली टू बी फॉलोड ईच एंड एवरी डे। हाँ, अभी फंस गए हम लोग। ये चीज करना है। अगर आज के पूरे वेबिनार में सबसे डिफिकल्ट चीज मैंने आपको बोली है तो वो ये, आपको हर दिन 5 मिनट एक जगह पे बैठना है और कुछ नहीं करना। कुछ लोग वो टीवी वाला एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वहां पे एक चॉकलेट होता है, वो चॉकलेट खाओ, और वो चॉकलेट खाने के बाद बोलते हैं डू नथिंग। वो वाली चीज नहीं है, चॉकलेट खाने वाली चीज नहीं। डू नथिंग का मतलब है एक जगह पे, ऐसी जगह पे जाके बैठो, आंखें खुली रखो और कुछ भी मत करो। विचार मन में आएंगे, सिर्फ विचारों को देखो, कौन सी विचार मन में आए, बस इतना ही करना है। 5 मिनट तक करना है। जितना हो सके अपनी बॉडी को स्टेबल रखो, आराम से बैठो, ऐसे टटके नहीं बैठना, आराम से बैठना एक जगह पे, डू नथिंग। 5 मिनट बैठ के तो देखो, बहुत मुश्किल है स्पेशली फॉर जेंजी। उनके लिए 5 मिनट मतलब बहुत बड़ी बात हो रही, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब मोबाइल में नहीं देखना है, टीवी पे नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना है। अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आंखें बंद करके बैठ लीजिए 5 मिनट, डू नथिंग। दिस इज रियली रियली गोइंग टू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ। सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो आई हैव गिवन यू गुड अमाउंट ऑफ टिप्स, यूनिवर्सल लॉज, सारे के सारे हॉर्मोन्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बोली है। ये आखिरी चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, मुझे 1 घंटा मिला था तो आई एम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1 आवर, लास्ट 2-3 मिनट्स, देन इट विल बी कंप्लीट 60 मिनट्स।
तो ये है लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों की खुशी देखिए, उनको खुश कीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात, डिफिकल्ट चीज है। पड़ोस वाले जो है उन्होंने नई कार खरीद ली, तो आपके मन में विचार क्या आते हैं, उनकी तरफ देखो। मतलब उसने ना 2 नंबर का पैसा कमाया रहेगा, आते कहां से इतने पैसे इनके पास? 10 लाख वाली कार तो ठीक है, मर्सिडीज कहाँ से लेकर आए? बिल्कुल ना डाका डाला रहेगा। चोर लफंगे लोग रहते हैं हमारे सोसाइटी। दूसरों को हैप्पी करके तो देखिए, जाओ उनको अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी गाड़ी है, एक चक्कर मुझे भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है? खुद ये तो सोचो, अरे उन्होंने मर्सिडीज ली है 50 लाख की, मैं तो BMW लूंगा 1.5 करोड़ की। ओ गॉड गिव मी दैट पावर कि मैं भी तो कुछ कर सकूं जिंदगी में। गॉड विल से तथास्तु, जो भी आपको बोलेंगे तथास्तु ही है। हाँ, आप बोलोगे कि उसने फ्रॉड किया है तो गॉड भी बोलेगा तथास्तु, तू भी फ्रॉड कर। अच्छी चीजें बोल के तो देखो, लोगों को हैप्पी करके देखो। बहुत सिंपल सी चीज मैं करता हूँ, जैसे मैंने गाड़ी पार्क करता हूँ सोसाइटी में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, तो उनके साथ में मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी उनके साथ मस्ती कर लेता हूँ, जानबूझ के हार जाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। अरे हाँ, ये अंकल को ना इंग्लिश की फीलिंग भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, तो दे लाफ एट मी अलाउड। कभी कभी उनके साथ खेल लेते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सो आई मेक देम हैप्पी। उनके पास हैप्पी हार्मोन्स है, मेरे पास भी हैप्पी हार्मोन्स है। एक छोटी चीज जो दूसरों को खुशी देती है, आपको भी खुशी देगी। तो ये सिंपल टिप के साथ में आप यहाँ पे आता है दी एंड, लेकिन दी एंड के साथ में आएगा ये वाली चीज। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। और मैं तो क्वेश्चंस लेने से पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड स्पेशल थैंक्स टू राजीव कुमार राय चौधरी सर फॉर गिविंग मी दिस invitation. This is really indeed a pleasure moment for me. So I'm stopping sharing and the session is open. किसी को कुछ पूछना है जरूर Sir, पूछिए। I have a Yeah, I question. can only say thank you so much, sir, and tathastu. These are the 3 words only, I think, that will really sum up. It was really, really beautiful and awesome, tips that you have given. I mean, straight from the core of your heart. And I'm sure it has gone down very well with everyone. So I just leave the floor open to questions. First and foremost, our honorable HOD, sir, Dr. Ajay Sharma, has got a very good question for you. And then followed by the vote of thanks from Dr. Hemant Sharma. अच्छा, कुछ क्वेश्चन से तो पहले हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। Okay, हाँ sir. सर। Okay, Ajay Sharma, sir will ask first. Then I'll go. ओके, चलिए। Please. यस अजय सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। Your voice is not being emanated, sir. नेटवर्क की Now Yes, can you sir. hear me? Am I audible Yeah, we now? can hear you now. Yeah, please go ahead, sir. No, it is being broken actually. Pra- Yes, please Praful start. sir, you have made our day. थैंक यू सर। Hello? You have really made our day today. We were really having hard to get all this for so many days. Hello? It was a much needed, tonic which we were expecting from you. ये तो And मैं this is the tonic we have really all got it. It was really phenomenal, fantastic, fabulous. Oh my God, thank you very much, sir, for your We appreciating were words. in a desperate need. We were in a desperate need of, looking for happy hormones for so long. Yes, yes, Because of, stressful lifestyle, work pressure, tensions of personal life, professional life. We all need, oxytocin, dopamine, whatever, these yes. hormones are. Of course. Really, we all have loved this so very much. Amazing. And I Thank you. invite you for my orientation program, sir. Please do come. Whenever we will commence our induction program, I formally invite you, right? And send a letter. I'll be happy to come by over there, sir. mail. I'll Yes, be sir. happy to come over there. And at this, I at this, really do a lot of good things when it comes to physical sessions, because in physical sessions there are a lot of activities which are done. So I'll be happy to do a lot of activities with your teachers, students, parents, kuch bhi ho. Yes, sir. In fact, I have shared your details to Dr. Ajay Sharma, sir, some time back. Of course, he's very busy, so I'm not too sure whether he could have a look or not.
But definitely, like you said today, I think this was the right platform to get to know you. And I'm sure this is just the starting point, and we will have many more sessions. And like you said, one session on positive thinking also could be Yes. something which is the need of the hour. Apart from the happy life, session. So we can stagger it, into multiple sessions over a period of time, and maybe more physical sessions. Yes, हेमंत सर प्रफुल्ल कुछ सर, पूछना हाँ मुझे कुछ पूछना है सर. हेलो. सर, Let आपको Ajay पूछना sir कुछ? finish, sir. हाँ हाँ. सर. I have one simple question that is very basic. You are man of R&D. Yes, sir. How you have shifted yourself from R&D to this, dimension, and that is very interesting. Really, I would love to hear from your end. ओके सर, बहुत बहुत ही आसान सा आंसर है इसका. हाँ. जिंदगी जिंदगी जीने की कला ये जो है, ये डीन R&D को ही क्या सर, हर व्यक्ति को चाहिए, हर एक Correct. को चाहिए. मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है. स्पिरिचुअलिटी का वर्ड निकाला तो सब लोग डर जाते हैं. तो यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में सबके सामने मैं बोलना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी की जो बेसिक है 0.1%, वो हमने आज सीखी है. लोगों के मन में डर रहता है कि अरे हाँ यार, बहुत खतरनाक चीज होगी स्पिरिचुअलिटी, बुढ़ापे वाली चीज है, दादा दादी वाली चीज है. मैं बोलता हूँ अपने घर में छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वहां से सीखना है. तो हम हमारे घर में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ये सारी चीजें, और बहुत बहुत जरूरी है सर ये चीजें. बीइंग अ काउंसलर, आई एम आल्सो अ काउंसलर, आई एम अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, and Dean R&D is one of my portfolio. So I've been doing many things at the same time. So this is only because of my passion. So explore your passion, everybody's passion, and do something. दुनिया के लिए कर दीजिए, चलो क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है. आई ऑल्सो, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया ना सर आज. मैं सेल्फिश, मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो मैंने आपको दे दिया हैप्पीनेस सबको, तो हो गया ना सेल्फिश. तो सेल्फिश बने रहिए, क्या फर्क पड़ता है. Happiness is good. Happiness is contagious, and it Yeah. must spread all over. सबसे Yes. infectious Spread चीज all सर over. happiness ही है. It's the most infectious चीज. Yes, Yeah. it has to be infectious. Like they say, laughter is also infectious. So that's the reason we should always, like you said, keep laughing, or at times, of course, smiling, so that it spreads to everyone. मेरा नाम ही प्रफुल्ल है, तो उसका मीनिंग ही हैप्पीनेस होता है. Exactly. So Exactly. you are the person who is living his name's meaning, truly. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. That was wonderful. Yeah, I think if there are some more questions, Yes, Mr. sir. Kushal, I think he has some question. I wanted to ask the same as Ajay Sharma sir said that Yeah. what is exactly your area. So I Yes, just could come to know as it was the mixture of everything, sir. It was the mixture of bio, science, physics, geology, geography, philosophy. So बिल्कुल. that's why it was in my mind that I should ask that what is your actual subject. So Okay. you are jack of all, and we are really thankful and indebted to have you with us. And it is said, sir, that company does effect. So we need your company most of the time. Then only it will be effective to us. A man is known by the company he or she keeps. Yes, yes. And really, sir, it So was we very would like to be in his company, right? mind-blowing session, sir. Praful, sir, it was mind-blowing, superb, well-defined, well-addressed, wonderful, and really, I'm running short of word. It was a, stock of infotainment. Information Ah. was there with the entertainment. So it was the beauty of the session. Really, we could learn a lot. Thank you very much for being with us. And I think Kushal sir wants to say something. Kushal sir, Dr. please. Rajesh over to Patil you. sir has Yeah, also raised a hand. Yes, sir. Yes. Sir, very good morning, sir. Hello, sir. Yes. And Patil sir, yes, can sir. we see? Yes, please. Please Yeah. come. Rajesh Patil sir, not Kushal sir. It is Yes. Rajesh Patil sir. Rajesh Okay, Patil Kushal sir. Yeah, sir this is is Dr. also Rajesh waiting. Patil, sir. He is Kushal sir is heading also our waiting, pharmacy sir. department. Yeah. Acha. Yes, sir. Okay, Rajesh sir. Yes, sir. Sir, very, very much thanks to you that your session was really motivating and really required for the professional persons. Because what happens in day-to-day life, we generally feel forgot the definition of happiness. And moreover, what are the ways to bring that happiness in our daily working life? So really, you have put some real-time examples into that, so that we can bring that happiness in our day-to-day life while doing our regular work. So many thanks to you, sir. Really, the seminar was very wonderful, sir, and very helping to us. These are Thank you, sir. Thank you very much, these are sir. the hidden pains, sir. As Rajesh Patil sir can be seen today. Generally, he is not seen,
मुझे एक गाना याद आ गया सर, अब इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है. So it was the pain and he came forward. Thank you, sir. Yes, sir. Kushal, sir, from design. Yes. Most welcome, sir. Yeah. Am I audible clearly? Yeah, Hello, sir, please. namaskar. Yeah, you're audible. Yeah. Happy to meet you again. Namaskar. Yes, very, very good to see you again, sir, and that too on a virtual platform. Yes. Because physically, I have heard you last time also, earlier also, we had a talk on phone also. So it was a privilege listening to you every time. Last time you had actually career coached many parents, not students. So it was really good to hear you. Now this was a very different topic which you took for the let's say academicians or teaching professionals who are, let's say, in a lot of pressure, and you can obviously hear them out right now from Dr. Rajesh Patel and Hemant Sharma sir and everyone. So my just one small point is that whether from your experience, whether you have experienced any increase in productivity with this kind of sessions from the organizations which you have been part of. Let's say people are happy and people are now working better and working more and maybe given a quality output from whatever domain they are. So whether you experienced that, and whether have you documented it in some way so that I mean we could actually let's say produce it to someone to show that okay, we need such kind of sessions. It's as Evidence simple is as that. In fact, I've been conducting so many workshops and We lot of need such documentation kind I of have done. session, Jadhav sir, badly. Praful Yeah, sir, that's what. Haji, we need such Yeah. kind of sections at regular intervals, and that too badly. ये जो हमने आज का सेशन Yeah, लिया that's था, what. ये So, नर्सरी वाला सेशन है, किंडरगार्टन में भी नहीं पूछा अभी तक. तो अभी तो Yes, बहुत सारी yes. चीजें हैं सीखने के लिए, तो सीखेंगे, मजा Yeah, आएगा I'm sure that करने के लिए. yes, I'm sure that people must have obviously been very interested, and maybe also it has been reflected in their work. So, any kind of case studies do you have in such things? बोलता हूँ. I've documented many workshops, but unfortunately for spiritual workshop sessions and where one-to-one Yes. counseling has been done, so I have never done Yes. any documentation because many a Okay. times it feels okay. Spiritual चीज है, कभी-कभी वो personal होता है, बहुत सारी बार personal होता है. Yeah, I mean, just to Yes, share my yes. industry experiences, we have had many sessions, from guest speakers in the industry also on these kind of topics. Yeah. But there are a lot of intangibles which cannot be always, measured. So sometimes it happens, and productivity is not a one-time or a one-night activity. Correct. It happens over a period of Yeah. time. So definitely, I'm sure with Dr. Prafulla's session, I mean, this session, like he said, is just one of its kind, and it's just the beginning. So it has to be always, Yeah. seen over a period of time, and then we can. I'm sure Yes. there'll be a lot of, fallouts out of these Yes. sessions. But yes, definitely, it's the need Yes. of the hour, like our honorable Dr. Sharma ji has said, and I guess it's the need of the hour for everyone who are going through such kind of phases, be it faculty, be it heads, be it students, be it even industry participants as such. And we will definitely see the results, coming over a period of time. Rajiv sir, Yeah. Rajiv sir, I want to say something on Kushal sir. Actually, the happiness should not be documented. As sir said that means नहीं होता है, can- वही No. tangible नहीं होता है वो. No. No, I think I've let's say if tried sir to would start explain in a documentation, very less then way. I he'll was not just be saying happy. that whether there is a slight improvement in of the output. That's what has Yeah, I been, think has been we will actually have to have. use AI to see the gestures of people after the sessions, and then AI can give us those outputs Sir, in obviously, terms of the Rajiv numbers. sir, obviously happiness comes, no doubt. Yeah. Obviously, it is very obvious. It comes, obviously. There Yeah, are I there are think, certain Yes. cases. I think the concept, Kushal sir, itself, like we are having so many webinars of different topics. Some of them are very topical, related to the subject. Some of them are, slightly different, and they are bordering on the metaphysical aspects, right? And that's precisely the reason I had a long discussion with Dr. Prafulla. In fact, couple of discussions, and he talked about various subjects. But I thought this subject was very pertinent from the learning point of view, as well as from the application point of view, and
the emotional quotient point of view. And that's precisely the reason I told him that, let us go ahead with this topic. Rajiv ji, it will help all of us to overcome our stress, anxiety, perplexity, which we have been suffering from so many days and years. Sir, you Absolutely, need, sir. you Absolutely. need Bhaviji with you. Yes. Ajay sir has different problem. Yeah. He's been living alone. एग्जाम्पल में You know. एक एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर We all करना need जरूर company. चाहूंगा Yeah, that we can discuss offline, I guess. We all need the company at this age No, and stage. एक एग्जाम्पल में जरूर शेयर करना चाहूंगा एज अ पार्ट ऑफ आंसर टू कुशाल सर क्वेश्चन Yes, sir. कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी इज देयर इन पुणे इटसेल्फ तो उन्होंने मुझे एक माइंडफुलनेस पे वर्कशॉप लेने के लिए बोला था ओनली सीनियर मैनेजर्स एंड अबव अप टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी तो वर्कशॉप स्टार्टेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती विद फैमिली थे आपने विद फैमिली का भी पॉइंट जिक्र किया तो विद फैमिली के लिए वर्कशॉप था रात के 9 बजे थे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है वर्कशॉप ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ गए गार्डन में थे वहीं पे उनके उनके जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था कंपनी का वहीं पे था रात के 10:30 बजे फिर मैंने बोला कि अभी मुझे खाना खाना है, घर जाने दीजिए रात के 10:30 बज चुके तो दे वर सो अटैच्ड उन्होंने बोला कि हमारी जिंदगी में हमने काफी सोचा कि माइंडफुलनेस इतनी तरीके से काम करता है इट वाज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी Exactly. बट इट टच देयर हार्ट अ लॉट बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स है जो मैं शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर सकता वन टू वन अगर हम आमने सामने आएंगे तो आई कैन कोट सम एग्जांपल्स वेयर द लाइफ हैज बीन चेंज्ड and not only one or two hundreds of people the life has been changed and it is not because of me मैं कोई नहीं हूं एक परमात्मा ने एक शक्ति दी है भेजा है इस धरती पे कि जा और लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके आ तो उन्होंने दिया हुआ काम है मैं सिर्फ कर रहा हूँ करने वाला ऊपर वाला ये मेरी बिलीफ सिस्टम है और मैं चाहता हूँ आप भी उस चीज के ऊपर बिलीव करो सर माइंडफुलनेस पे मैं भी आपका एक लेक्चर चाहूंगा अपने बच्चों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम में इज बिल्कुल इट ओके विद यू एंड दैट विल बी ऑफलाइन ऑफलाइन आएंगे तो बहुत मजा आएगा ठीक है And we enjoyed online also, sir. We enjoyed. हाँ we enjoy it really. It is not Yeah, second to we'll none. keep using both the channels as they are applicable. For induction, of course, offline is most appropriate. And for webinars, of course, we have to make it online. So yeah, hybrid programs chalte rahenge, sir. But definitely we wish to have you at the university campus physically in person. Like I have met you physically during one of these events, thanks to PCU. And definitely from that time onwards, we are in touch. And then today we could, make it happen for this webinar. And I'm sure everyone enjoyed this conversation, completely. And we will take it forward from here for sure. And we'll have a lot of more topics to discuss and share. So yeah, cross-pollination, sir, hota rahega. Yes, thank you sir, thank you very Thank much you, for sir. giving Thank you this so opportunity. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time and spending so much time for Individual all of us session. here. And we will be in touch. Thanks Good a day lot ahead, to sir. every participant. Good Thank day you to so you. much, Hemant ji. Thank you so much, Sharma ji, for being here. And thanks a lot to all the participants. And we will keep moving forward from here. Thanks a lot. Good day. Bye-bye. Thank you sir, thank you. Thank you everybody. Thanks a lot, Sharan, Azaz, whoever is there. Beta, please. It has been over. Okay, sir. Yes. Thank you. Thank you, Sharan.